Hello students, in this video, that is the third video of chapter 2, we will discuss exercise 2b. We have already discussed exercise 2a, in which we discussed what is fraction, addition of fractions, subtraction of fraction. Here in this exercise in 2b, we will discuss the multiplication of fraction. In short, let me recall you what is a fraction. A number in the form of a upon b is called a fraction, where a is called numerator and b is called denominator. So suppose if we multiply two fractions a upon b into c upon d, we simply multiply the numerators together, that is a into c, and denominators together, that is b into d. Example, suppose we have to multiply 1 upon 2 and 3 upon 5. So we will multiply numerators together 1 into 3 and denominators together, that is 2 into 5 is equals to 3 upon 10. That is the answer. Now let's discuss exercise 2b. Question number 1, find the product. So here is the first of question number 1, that is 3 upon 5 into 7 upon 11. Solution, we will multiply numerators together, that is 3 into 7, and denominators to denominator, that is equals to 3 7s are 21 and 5 11s are 55, and here is the answer. Similarly, question number 2, that is 4 upon 8 into 4 upon 7. 4 upon 8 into 4 upon 7. Solution, multiply numerators together. Sorry, the question is 5 upon 8 into 4 upon 7. So numerator will be multiplied by numerator, that is 5 into 4, and denominator to denominator. Now check, if any numerator cancel out denominator, then cancel out them. 4 1s are 4 and 4 2s are 8. Now we have numerator 5 1s are 5 and denominator 2 7s are 14, and here is the answer. Let's solve another question. Question number 5, 8 upon 15 into 20. 8 upon 15 into 20. Solution, here we do not have denoted any number that is in the form of natural number or whole number or any integer. It has hidden denominator 1, that is equals to 8 upon 15 into 20 upon 1. Now multiply numerators together, 8 into 20 and 15 into 1. 5 4s are 5 3s are, that is equals to 8 4s are 32 upon 3. Since the fraction is improper, convert into mixed fraction. 3 10s are 30, carry 2, और डिनोमिनेटर में फिर से हम वापस से वही नंबर लिख देंगे. आंसर. One more question from question number 1, that is question number 10. I will solve. Okay, let's solve question number 10. 9 over 1 upon 2 into 1 whole 9 upon 19. 9 whole 1 upon 2 into 1 whole 9 upon 19. Solution, firstly we will convert the mixed fraction into improper fraction. 9 2s are 18, 18 and 1 19 upon 2 into 19 1 is 19, 19 and 9 28 upon 19. Now multiply numerators together, 19 into 28 and denominators to denominator, 2 into 19. 19 cancel out 1 times में 2 1s are and 4s are, that is equals to
14 आंसर. Question number 2. The first. Simplify 2/3 into 5/44 into 33/35. Solution. We will follow the same steps. Multiply together the numerators. 2 into 5 into 33 divided by 3 into 44 into 35. 3 ones are 3 ones are 1s are 11 ones are 11, 11 fours are 44, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 5 ones are 5, 5 sevens are 35. So finally we have numerator 1 and numerator is 7 twos are 14. That is the answer. Question number 5. That is 1 whole 4/7 multiplied by 1 whole 13/22 into 1 whole 1/15. Sorry. The question number 5 is 2 whole 2/17 into 7 whole 2/9 into 1 whole 33/52. 1 whole 33/52. मैं हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. सारे क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो सारे इन्हीं टाइप के हैं. तो प्रैक्टिस करें खुद से. अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शंस में अपने क्वेश्चंस भेजें या फिर जो भी डाउट्स हैं. नाउ कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 17 2 34, 34 into 36/17, 9 7 63, 63 into 65/9 into 52 1 52, add 33, 325 538 whole divided by 52. So 3 1s are 3 2s are and 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 17 1s are 17, 17 5s are 85, 13 5s are 65, 13 4s are 52, 4 and 4 cancel out. So we have 5 5s are 25 and divided 1. That is not necessary to write. तो आप सबको एटलीस्ट कम से कम 20 टक्स के टेबल याद होने चाहिए, तभी आगे दिक्कत नहीं होगी. Now question number 3. The first. Find 1/3 of 24. 1/3 of 24. Solution. So what is the meaning of off? Recall the Bodmer's rule. जहाँ पे भी ऑफ मिलता था हम वहाँ ऑफ को हटा के उसके बदले इनटू का साइन पुट करते थे, यानी प्रोडक्ट का साइन. सो 1/3 ऑफ के बदले इनटू 24 मल्टीप्लाई करते हैं. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 1 into 24 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 3 1s are 3, 3 1s are 3 8s are. So the answer is 8. That's all. फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही, 3 भी वैसे ही, 4 5 6 7 भी वैसे ही है. फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ. 9/4 of 54 meters. 9/4 of 4/9 of 54 meters. सॉल्यूशन. ऑफ को हटा के उसके बदले इनटू का साइन पुट करेंगे. सॉल्यूशन 4/9 ऑफ के बदले हमने इनटू पुट कर दिया 54 मीटर्स. दैट इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को जरूरी नहीं हम हर बार नीचे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. अगर दिक्कत हो रही है तो उसे लिखेंगे. अब 9 1s are 9, 9 6s are 54 मीटर्स.
दैट इज इक्वल्स टू 6 4 24 मीटर्स। डिनोमिनेटर 1 है, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर। फिर 8 भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 9 देख लें, 1/6 ऑफ एन आवर। नाइन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 1/6 ऑफ एन आवर, यानी हमें 1 घंटे का 1/6 वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन तो एन आवर मीन्स 1 आवर। अब 6 और 1 में कोई कैलकुलेशन कर नहीं सकते, तो बेहतर होगा, और वैसे जो भी वैल्यू आएगी वो 1 घंटे से कम आ रहा है, तो 1 घंटे से कम जो यूनिट होता है टाइम का वो मिनट होता है, तो हम यहाँ पे आवर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। सिंस 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, देयरफॉर 1/6 ऑफ, अब एन आवर के बदले हम पुट करेंगे 60 मिनट्स, दैट इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ के बदले इनटू का साइन 60 मिनट्स। अब न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ 1 × 60 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से नीचे 1 हिडन है। 6 1 जा 16 जा, यूनिट साथ साथ कैरी करते रहेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, 5/6 ऑफ एन आवर, तो एन आवर को 12 मंथ्स में लिख देंगे। 7/20 ऑफ अ के जी के बदले वहाँ पे 1000 ग्राम करके कैलकुलेट करेंगे। फिर 9/20 ऑफ अ मीटर, तो 1 मीटर को 100 से में कन्वर्ट करेंगे। फिर 7/8 ऑफ अ डे, तो अ डे को आप लिखेंगे वहाँ पे 24 आवर, और फिर कैलकुलेशन करेंगे। सेम ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया वैसे ही सारे सॉल्व होंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 तक। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करता हूँ। 13, 7/8 ऑफ अ डे, तो 1 डे के बदले में लिखेंगे 24 आवर्स। सॉल्यूशन सिंस 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, देयरफॉर 7/8 ऑफ 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 7/8 ऑफ के बदले इंटू 24 आवर्स। अब न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से 7 × 24 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आवर्स। 8 1 जा 8 3 जा, दैट इज इक्वल्स टू 7 3 जा 21 आवर्स, एंड हियर इज द आंसर। दैट्स ऑल। अब शुरू होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। 4 से लेके 15 तक या फिर जो भी इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे सारे वैसे ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे 4। द क्वेश्चन सेज एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48 होल 4.5 पर kg, यानी 1 kg सेल किया जा रहा है ₹48 होल 4.5 में। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल। तो जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, गिवन डेटा क्या है, यानी क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, 2 डेटा है, एक तो है एप्पल और दूसरा उसका कॉस्ट, और हमें फाइंड आउट करना है फाइनली यहाँ पे कॉस्ट, एप्पल्स एंड कॉस्ट, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे ये सारे यूनिटी मेथड से ही सॉल्व होंगे। स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है उसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। फिर से सुने, जो भी हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे उसमें वो वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है, वो डेटा जो फाइंड आउट करना है उसको हम राइट साइड लिखेंगे। कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 में बताता हूँ। और स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन के लास्ट सेंटेंस से, जहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल्स। हम लिखेंगे सिंस
the cost of 1 kg apple is equals to rupees 48 whole 4.5, रुपीज़ 48 होल 4.5। क्वेश्चन क्या रहता ना, एप्पल्स आर सोल्ड एट रुपीज़ 48 होल 4.5 पर के जी, पर मीन्स 1, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल्स, 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल्स टू, जब भी हमें एक का प्राइस मानी यूनिट का प्राइस, यूनिट के डेटास पता हो, तो अब जितना भी हमें फाइंड आउट करना होगा, केजी, मीटर, लीटर, जो भी हो, तो उस यूनिट प्राइस से एक से ज़्यादा जितना भी है उसमें हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 kg का कॉस्ट हमें पता है, अब जितने kg का भी क्या है, हम सिंपली 1 kg की प्राइस से उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे, करते हैं मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 48 होल 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल 3/4 kg। अब यहाँ पे kg हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम फाइंड आउट करें कॉस्ट, कॉस्ट का यूनिट क्या होता है, रुपीज़, तो हमने यहाँ पे रुपीज़ पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसको, 48 5 जा 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 and 4 24 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 442 244 divided by 5 into 4 is 12 and 3 15/4। न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल्स टू 244 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 रुपीज़। 4 1 जा 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 दैट इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 रुपीज़ 183। अब जब हम वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आंसर को स्टेटमेंट में लिखेंगे। स्टेटमेंट हम बनाएंगे लास्ट वाले सेंटेंस से, यानी क्वेश्चन से, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3.4 kg, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg of apples is rupees 183 answer। Similarly, cloth is being sold as rupees 42 whole 1/2 per meter। 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट दिया हुआ है, डेटा नोट करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 42 whole 1/2, therefore the cost of 5 whole 3/5 meters of cloth is equals to, मल्टीप्लाई कर देंगे सेम ऐसे ही, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 42 whole 1/2 इंटू 5 whole 3/5। क्वेश्चन नंबर 6, a car covers a certain distance at a uniform speed of 66 whole 2/3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल करता है 66 whole 2/3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स। तो ध्यान यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो जो स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तैयार करेंगे, डिस्टेंस को हम लिखेंगे राइट साइड में, या फिर सिंपली इस क्वेश्चन को आप स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। स्पीड दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वैसे ही बना सकते हैं। मैं यहाँ पे यूनिटी मेथड से सॉल्व कर देता हूँ इसको, 6 से सॉल्यूशन। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, तो जब हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो डिस्टेंस को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ओके। 66 whole 2/3 किलोमीटर पर आवर, सिंस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड in per hour means 1 hour is equals to 66 whole 2/3, 66 whole 2/3 kilometer, therefore the distance traveled in 9 hours
is equals to 66 whole 2 upon 3 into 9 किलोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू, कन्वर्ट करते हैं इसको, 3 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 6 जा 18, 18 and 1 19, अब इस वैल्यू में 2 भी ऐड करना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 3 इंटू 9 किलोमीटर, 9 के नीचे 1 हिडन है, दैट इज इक्वल्स टू 200 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 3 जा, दैट इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 और 2 जीरोस वैसे ही पुट कर दें, किलोमीटर, आंसर। स्टेटमेंट में तैयार करेंगे, इट विल कवर, therefore the car will cover 600 kilometer in 9 hours. That's it. Question number 7. One tin holds 12 volt 3.4 liter of oil. तेल का डब्बा है और एक डब्बे में 12 volt 3.4 लीटर है. How many liters of oil can 26 such tins hold? तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे, ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे इसके लिए। सिंस द कैपेसिटी ऑफ 1 टिन इज इक्वल्स टू 12 volt 3.4 लीटर्स, देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ 26 टिन्स इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 26 से, आ जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, फॉर पर्टिकुलर शो इन अ सर्कस इस टिकट कॉस्ट ₹35 होल 1/2, यानी एक टिकट का कॉस्ट है 35 होल 1/2 रुपीज़। कह रहा है 308 टिकट्स आर सोल्ड फॉर द शो, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड। अगर वहाँ पे 308 टिकट बिके हैं, टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट वैल्यू को हम लिखेंगे राइट साइड। सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज इक्वल्स टू, question number 8, since the cost of 1 ticket is equals to ₹45 whole 1/2, 35 whole 1/2, therefore the cost of 308 tickets is equals to ₹35 होल 1/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 308 से, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस रखें या फिर जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट करें हमें। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, जैसे कार्डबोर्ड हो गए या फिर बुक्स हो गए। जैसे यहाँ पे ये बुक्स हैं, ये 4 बुक्स है, एक के ऊपर एक इनका स्टैक यानी थाक लगा दिया गया है, इनकी गड्डी तैयार कर दी गई है। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड, जैसे यहाँ पे हर एक बुक का थिकनेस है सपोज 5 cm, तो पूछ रहा है वो स्टैक कितना ही होगा। मान लेते हैं यहाँ पे हर बुक है यहाँ पे 5 cm का, वैसे ही 5 cm नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 cm होगा। तो अगर 5 cm हम मान लेते हैं तो 5 4 20, इस स्टैक की हाइट हो जाएगी 20 cm। तो स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे, हमें हाइट फाइंड आउट करना है। सिंस द हाइट ऑफ यानी थिकनेस ऑफ 1 board is equals to 3 whole 2/3 centimeter, therefore the thickness of 9 boards is equals to 3 whole 2/3 into 9. Okay. Question number 10. Rohit takes 4.5 minutes to make a complete round of a circular park. How much time will he take to make 15 rounds? हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो 1 राउंड के लिए दिया हुआ है। सिंस, ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 10, सिंस टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 complete round is equals to 4 whole 4.5 minutes,
Therefore, time taken to complete 15 rounds is equals to 4 whole 4.5 minutes into 15. कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो 60 मिनट से ज़्यादा आएगा, तो 60 मिनट से ज़्यादा को आप कन्वर्ट कर लेंगे आवर और मिनट्स में. 60 मिनट्स के लिए 1 आवर रखेंगे. 11. अमित वेट्स 35 kg. हर सिस्टर कविताज वेट इज 35 ऑफ अमित वेट. हाउ मच डज कविता वेट. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 यानी 11, 12, 13 ऑलमोस्ट सेम ही है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. सॉल्यूशन. अमित वेट्स 35 kg. सिंस the weight of Amit is equals to 35 kg. Since her sister Kavita's weight is 3/5 of Amit's weight, the weight of Kavita 3/5 ऑफ अमित वेट, और अमित का वेट है कितना 35 kg. दैट इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ के बदले इंटू के साइन पुट करेंगे 35 वैसे लिखा हमने. मल्टीप्लाई कर लें न्यूमीटर को न्यूमीटर से 3 × 35 डिवाइडेड बाई 5. चाहे तो इसके नीचे 1 × 1 भी कर सकते हैं. 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा दैट इज इक्वल्स टू 3 7 ज़ा 21 kg. आंसर स्टेटमेंट में तैयार करेंगे. देयरफॉर कविता's वेट इज 21 kg. इज 21 kg. आंसर. There are 42 students in a class and 5.7 of students are boys. How many girls are there in the class? क्वेश्चन नंबर 12. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है स्कूलों में, तो नोट करते डेटा इसको. देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. सॉल्यूशन. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल्स टू 42. सिंस कह रहा था जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 5/7 बॉयज़ हैं. नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 5/7 ऑफ 42. कैलकुलेट करते हैं होगा कितना ये 5/7 इंटू 42 दैट इज इक्वल्स टू 5 × 42 डिवाइडेड बाई 7. 7 1 जा 7 6 जा दैट इज इक्वल्स टू 30. कैसे नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने. टोटल 42 हैं, बॉयज़ है 30, यानी गर्ल्स कितनी हुई 12. देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ बॉयज़. टोटल स्टूडेंट्स थे यहाँ पे 42, नंबर ऑफ बॉयज़ आए हैं 30, दैट इज इक्वल्स टू 12. और ये हो गया हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. सपना अर्न्स 24,000 per month. She spends 7/8 of her income and deposits rest of the money in the bank. How much money does she deposit in the bank each month? ध्यान से सुने, वो अर्न करती है 24,000. नोट करते चलते डेटा को. 13. Solution. Since Sapna's income is equals to ₹24,000. फिर क्वेश्चन करें शी स्पेंड्स हर इनकम यानी अमाउंट स्पेंड इज इक्वल्स टू 7/8 ऑफ हर इनकम.
7/8 ऑफ हर इनकम, और इनकम है कितना, ₹24,000, दैट इज इक्वल्स टू 7/8 ऑफ के बदले हमने लिखा इंटू ₹24,000, दैट इज इक्वल्स टू 7/8, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू ₹24,000 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8 3 जा 24, और ये तीनों जीरो वैसे ही लिख दिया हमने, 7 3 जा 21, 3 जीरो पुट किया हमने रुपीज़, यानी इतना अमाउंट वो खर्च कर दे रही है। बाकी जो बच रहा है, एंड डिपॉजिट्स रेस्ट मनी इन द बैंक, हाउ मच मनी डज शी डिपॉजिट इन द बैंक each month, therefore amount deposited by her is equals to, जो टोटल इनकम है ₹24,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ₹21,000 को, यानी जितना उसने कमाया और जितना खर्च कर दिया, अब जो बचा होगा वही वो डिपॉजिट करिए, सेव करिए, दैट इज़ ₹3,000, दैट इज़ द आंसर। कोशिश करें क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें, अगर समझ में आता है तो फिर प्ले करें और मैच करें अपने सॉल्यूशंस को। क्वेश्चन नंबर 14, इस साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। सो हियर इज ए स्क्वायर फील्ड दैट इज ABCD, स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, और साइड के वैल्यू है कितना, 4 होल 2/3 मीटर। सॉल्यूशन, सिंस length of each sides is equals to 4 होल 2/3 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू, कन्वर्ट करते हैं 3 4 12 एंड 2 14/3 मीटर, सॉरी 14/3 मीटर। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, दैट इज इक्वल्स टू 14/3 मीटर इंटू 14/3 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 14 14 196 एंड 3 3 तो काम करते हैं, स्प्लिट करते हैं इसको, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करके ये हो गया मीटर स्क्वायर, कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा तो प्रोडक्ट वैल्यू रखते हैं, 14 14 अगर नहीं पता है स्क्वायर वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर ले, 14 4 56 6 कैरी 5, 14 14 एंड 5 19/3 3 9 मीटर स्क्वायर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, 9 2 18, 1 कैरी हुआ यहाँ पे, 9 2 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 1 9, अभी बचा यहाँ पे 7 और डिवाइडेड 9 वैसे ही लिख देंगे स्क्वायर, आंसर। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क which is 41 होल 2/3 मीटर लॉन्ग एंड 18 होल 3/5 मीटर ब्रॉड। सेम वैसे लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ एरिया फाइंड आउट करना है। सो here is a rectangle ABCD, length is 41 होल 2/3 मीटर and the width यानी breadth is 18 होल 3/5 मीटर। सॉल्यूशन, ऊपर छोटा सा n लिखते हैं, लेंथ इज इक्वल्स टू 41 होल 2/3 मीटर, कन्वर्ट कर इसको, 3 1 3 3 4 12, 2 इसमें ऐड करना है तो अभी हो गया 125/3 मीटर।
since breadth is equals to 18 whole 3/5 meter, that is equals to, कन्वर्ट कर ले 18 5 90 और 3 93/5 meter. Therefore area of the rectangle is equals to length into breadth, that is equals to length value is 125/3 मीटर और ब्रेथ है यहाँ पे 93/5 मीटर. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें, 125 मीटर इंटू 93 मीटर, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से 3 × 5 कैंसिल होंगे यहाँ से, 3 से 3 से 9, 3 1 × 3, 5 से ही हो गया, 5 2 × 10, 2 कैरी हुआ 25, 5 5 × 25. सो 25 × 31, 25 1 × 25, 5 कैरी 2, 25 3 × 75 एंड 2 77. नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, मीटर और मीटर मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर. आंसर फिनिश हो गया एक्सरसाइज. ये भी पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस के डिवीज़न. बाय बाय.